Good evening, everybody. Good evening, sir. How are you all? All fine? Fine, Yeah, sir. Fine, sir. very nice. So सब लोग ज्वाइन कर लो भाई, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो. Nice, nice. 46, very good. 47, nice. Very good, very nice. So all engineers, a very happy engineering day, Vishwakarma Puja, belated though. And all you are here. Thank you very much for coming, joining me. And wow, wow, great, 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 great. सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं. So all electrical engineers are here. Anybody other than electrical? Kindly drop a message on chat box. Anybody other than electrical? Okay, all are electrical, I guess. Very nice, very nice. Power electronics and instrumentation. Okay, not an issue. Abhishek Sharma, Rohit Shah, EC, very good. Electronics and instrumentation, Abhinav, Abhinava. Okay, not an issue. Electronics, instrumentation, electrical. So all those branches have single mother branch called electrical. Is that it? So we, sorry. So electrical is the mother branch for electronics, instrumentation. And first of all, let me introduce myself. I am Nasim Nijar Majumdar, and I am B in instrumentation. I have 15 years of experience in industry, and regarding this training, I am doing this since 2013. And lots of students have been placed from Ontogenesis Automation. And we believe that you will gain something best in your life, what you didn't even imagine when you were in college. Anyways, guys, we are going to start our class right now. We have a shortage of time because there are lots of groups, lots of participants. So we have to constrain in this because we can accommodate only 100 participants in a batch, as Zoom do not allow us. Is that it? You know that? So are you comfortable in English or Hindi? Are you guys comfortable in English or Hindi? Which language should I opt for the training? Yes, sir. Hindi. Hindi, English. हिंदी Yes, बेटर sir. होगा. चलो ठीक Yes, है, कोई बात नहीं, हम लोग हिंदी में बात करेंगे. अभिनव इंग्लिश, ओके, चलो इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर देते हैं, इंग्लिश बना देते हैं, है ना? दैट विल बी बेटर. सबको समझ में आती है? हाँ, हेलो हेलो. हिंदी में बोले सर, शुद्ध हिंदी. हिंदी, शुद्ध हिंदी. चलो, शुद्ध हिंदी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे कि इंग्लिश और हिंदी को मिला देते हैं, है ना? तो बेटर होगा सबके लिए. Yes, जो हिंदी समझता है वो हिंदी भी समझेगा, जो इंग्लिश समझ, और इंग्लिश सबको समझ में आना चाहिए, आई थिंक, बिकॉज यू ऑल आर BTech diploma students so far, I think. Yes, mixed. So guys, we are here to familiarize. Today's topic is your power plant familiarization, is that it? So do you have any knowledge regarding power plant? Anybody? Did you ever visited the power plant industrial during your industrial visit or something? Anybody has any idea what is a power plant? Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. So you can see my screen in front of you. That is Introduction to Thermal Power Plant, and which is one of the
one of the best industry in not only in India but overall in the world, because without power we can't even think life today, isn't that it? So power and power plant, we have to understand basically what is power plant, the process, your scope in power plant, where you can get a job, how can you get a job, and what you need to know to get a job. Is that it? That is the main focus. Yes, sir. Job is the main focus, is that it? Or learning is the main focus? What? Tell me. Job or just knowledge? Sir, both. 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 Okay, very Job. good. So we need job, and without knowledge we cannot get a job. Is that it? So both is required. Job is our primary need, but without your knowledge you cannot achieve that particular job. Is that it? So my dear friends, power. What is power? Tell me. What is power? Power क्या है? क्या होता है पावर? बोलो भाई, पावर क्या होता है? Ability to do work, is that it? So okay, tell me which form of energy we are going to learn power plant. That means we are going to generate what? We are going to generate electrical energy, is that it? Tell me which form of energy has the best utilization or preferred, most preferred energy. सबसे ज्यादा प्रेफर्ड किया गया एनर्जी कौन सा है? बहुत सारे टाइप के एनर्जी होते हैं, पता है ना? मैकेनिकल एनर्जी बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो, केमिकल एनर्जी बोलो, है ना? तो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस, अब बताओ अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रेफर्ड एनर्जी है तो क्यों है? व्हाई इट इज द मोस्ट प्रेफर्ड एनर्जी? व्हाई? Anybody? उससे यूज बहुत है सोलर एनर्जी, नो कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल एफोर्ट। नहीं यार, इलेक्ट्रिकल पावर बनाने में तो एनवायरमेंट टेम्पर होता ही होता है, कैसे नहीं होता है? Easily convertible to other forms of energy. Yes, exactly right. Good one, Maharshi Shah. Very good. Or because it can be easily converted to other forms. Okay, Ramanus, Anil Kumar, easy to transfer. Very nice. Good one. Anil Kumar के लिए एक big clap. See, all other form of energy, किसी भी टाइप का एनर्जी है ना, उसको जब आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत बड़ा पंगा हो जाता है अपने साथ। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आप जनरेट करो और आप भेज दो, है ना? इंडिया के किसी भी कोने पे आप जनरेट करो और उसको किसी भी दूसरे कोने पे भेज दो, इंस्टेंटेनियस। मैं अभी यहाँ पे बैठ के पावर जनरेट करूंगा, आपके घर पे पावर पहुंचा दूं, इंस्टेंटेनियस। ऐसा नहीं है कि टाइम दूं। तो दैट इज द मेन रीजन कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे ज्यादा प्रेफर्ड एनर्जी माना जाता है। आप तार लगाओ, नेटवर्क बनाओ, इधर जनरेट करो, उधर यूज करो। लेकिन वहीं पे सोचो कि उतना ही जितना पकड़ लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं अभी, उतना एनर्जी अगर मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना पड़ जाए तो मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको शाफ्ट लगाना पड़ेगा, बियरिंग लगाना पड़ेगा, घुमाओगे, कुछ करोगे तब जाके जाएगा, है ना? केमिकल एनर्जी वैसा ही, पूरा डंपर भर भर के केमिकल रॉ प्रोडक्ट आपको लेके जाना पड़ेगा, कहीं पे उसको बर्न करना पड़ेगा, तब जाके आएगा।
सो नीट एंड क्लीन एनर्जी अगर कुछ है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में तो वो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इजीली कन्वर्टेबल किसी भी फॉर्म में। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायरेक्ट यूज क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डायरेक्ट यूज नहीं है। आप कैसे यूज कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हो आइदर हीट में या फिर लाइट में, है ना? तो किसी ना किसी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम किसी भी दूसरे एनर्जी पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अपने पावर प्लांट का दौरा, और चलो मेरे साथ इंडस्ट्री पे, पावर प्लांट इंडस्ट्री। ये रहा आपके सामने पावर प्लांट इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है आप इधर गए और पावर जनरेट हो गए, है ना? सो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, क्या क्या सेक्शंस होते हैं? सो पावर प्लांट में किस किस ब्रांच के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जॉब मिल सकता है, बताओ? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल, ओके, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को मिलेगा, मैकेनिकल को मिलेगा, और इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन को मिलेगा, और सर इंस्टॉलिंग पर्पस के लिए सिविल का भी मिल सकता है। हाँ सिविल का भी बिल्डिंग। काम है। तो हर एक ब्रांच का, ऐसा नहीं है कि भाई पावर प्लांट है इसलिए इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही काम होगा। पावर प्लांट है तो इसमें मैकेनिकल भी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिकल भी चाहिए, इसको इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी चाहिए, और सबसे शुरुआती दौर पे तो उसको सिविल इंजीनियर चाहिए, नहीं तो बनाएगा कौन, है ना? तो हर एक ब्रांच का स्कोप है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कवर क्या करने जा रहे हैं? हम लोग कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीजें। ये तीनों ब्रांच के ऊपर हम बात करेंगे। अब देखो पावर प्लांट में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, या फिर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट होता है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट। एक होता है आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और एक होता है आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस। एक रहता है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। किसी भी पावर प्लांट पे आप जाओगे तो देखोगे, जो टेक्निकल लाइन पे मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन रिलेटेड, है ना? उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का स्कोप है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही मोस्टली प्रेफर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लड़के कोशिश कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो फिर आराम से काम कर सकते हो आप। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में तीनों ब्रांच के बच्चे काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का नॉलेज है, अगर आपको ऑटोमेशन का नॉलेज है, ऑटोमेशन का नॉलेज है, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज है और इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है, तब जाके आप कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट पे काम कर सकते हो। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मेनली कौन काम करता है? मेनली आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे रहते हैं, या फिर अगर रिफाइनरी वगैरह है तो फिर वहां पे देखोगे तो केमिकल इंजीनियर्स भी आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे मिलेंगे। मैकेनिकल मेंटेनेंस पे तो जाहिर सी बात है यार, मैकेनिकल इंजीनियर ही जाएंगे, है ना? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मैकेनिकल पे नहीं जाएंगे। बट मैं बता दूं, मेरा एक दोस्त है, दोस्त नहीं बोलना गलत होगा, मेरे से काफी सीनियर है, अप्रोक्सीमेटली मेरे से भी शायद से 15 साल सीनियर। ही इज ए इलेक्ट्रिकल गाय, लेकिन उनको इलेक्ट्रिकल का टेस्टर पकड़ना नहीं आता है। वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गए, समय की बात है। वो मैकेनिकल का एक एक बड़ा बड़ा टरबाइन दे दो, खोल खाल के वो ठीक कर देंगे, गैस टरबाइन दे दो, कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन इलेक्ट्रिकल का ई भी नहीं आता है। तो आप जो पढ़ रहे हो और जब आप जॉब पे जाओगे तो आपका जो ट्रांसफॉर्म होगा, उसको कब कहाँ पे क्या मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। आपका आँख कान नाक मुंह सब खुला होना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी जिंदगी में। रिमेंबर वन थिंग, पावर पढ़ रहे हो तो फिर बताओ कि सबसे बड़ा पावर क्या है? सबसे बड़ा पावर क्या है इस दुनिया का? न्यूक्लियर पावर, नॉलेज, सॉरी, सन, है ना?
बट माय डियर फ्रेंड्स, लोग कहते हैं नॉलेज इज पावर। नॉलेज पावर नहीं है, implementation of the knowledge is power. Remember my word, implementation of the knowledge is power. अगर आपके पास नॉलेज है उससे आपको पावर नहीं मिलेगा। वो आपकी लाइफ में जब तक वो सारे नॉलेज जो आपने एक्वायर किए आज तक उसको इम्प्लीमेंट ना किया ना, तो आपका सारा पावर जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है उस पावर का। सो नॉलेज इज डेफिनेटली द बेस्ट पावर, द मोस्ट पावरफुल थिंग इज नॉलेज, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। स्कूल से पढ़ते पढ़ते आज यहाँ तक आ गए हो, लेकिन अगर जो कुछ पढ़े हो अगर वो भूल जाते हो तो बिना स्कूल ना गया हुआ आदमी और आप में क्या अंतर रह जाएगा, है ना। सो हम एजुकेटेड लोग, इंजीनियर्स लोग, अगर इंजीनियरिंग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट ना कर पाए, प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता इंजीनियरिंग का। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ कंट्रोल रूम इस तरीके का दिखेगा, आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहला तो पावर प्लांट। व्हाट इज ए पावर प्लांट? टेल मी, व्हाट इज ए पावर प्लांट? और जहाँ पे पावर जनरेट होता है। जहाँ पे पावर जनरेट होता है। आपने कभी जो आपके घर में जनरेटर देखा है या फिर शादी में जनरेटर देखा है? शादी वगैरह में, फंक्शन में जनरेटर लाते हैं ना, yes तो sir, क्या हम उसको पावर प्लांट बोलेंगे? यस सर, स्मॉल डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट आएगा सर, स्मॉल। तो वो डीजी जनरेटर हुआ, उसको थोड़े ना पावर प्लांट बोलोगे, है ना। पावर जनरेटर, उसको जनरेटर बोलेंगे, उसको पावर प्लांट नहीं बोलेंगे। तो पावर प्लांट क्या है? पावर प्लांट इज एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज क्वांटिटी, है ना। वो आपने 2 किलोवाट 10 किलोवाट का एक तो जनरेटर लगा दिया, उसको आप पावर प्लांट नहीं बोल सकते हो। पावर प्लांट इज एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, अब बताओ भाई पावर प्लांट के टाइप क्या क्या होंगे बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट? अब बोलोगे एक्सपोर्ट के ऊपर बेस करके मैंने पूछा, अब पूछोगे कि सर एक्सपोर्ट क्या होता है ना। आप जब पावर जनरेट करते हो, जो पावर जनरेट करते हो उसको क्या करोगे? एक्सपोर्ट ही ना करोगे, कहीं पे बेचोगे, कोई दूसरा यूटिलाइज करेगा। तो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट क्या क्या टाइप का पावर प्लांट होगा? 2 टाइप के पावर प्लांट होगा, एक होता है सीपीपी, एक होता है आईपीपी। एक को हम बोलते हैं कैप्टिव पावर प्लांट, सीपीपी मतलब कैप्टिव पावर प्लांट, आईपीपी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। अब कैप्टिव क्या है? कैप्टिव या फिर यूटिलिटी बोलो, जो पावर प्लांट किसी दूसरे इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। मतलब पकड़ लो आपका एक स्टील इंडस्ट्री है और उसमें जो मशीन्स लगे हुए हैं उनको चलाने के लिए आपको जितना पावर चाहिए उसके लिए आपने एक अपना पावर प्लांट बिठाया हुआ है। उस पर्टिकुलर पावर प्लांट को क्या बोलेंगे? कैप्टिव पावर प्लांट। और इंडिपेंडेंट पावर प्लांट कौन सा होगा? जिसमें पावर जनरेट कर रहे हो और ग्रिड में सप्लाई कर दे रहे हो। ये पावर प्लांट डिपेंड नहीं करता है किसी इंडस्ट्री के ऊपर, ये क्या हो रहा है पब्लिक यूज के लिए ग्रिड में जा रहा है इसका पावर। तो एक को बोलोगे सीपीपी कैप्टिव पावर प्लांट, दूसरा है आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। नेक्स्ट, और कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको टाइप्स को? बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी इनपुट। अब इलेक्ट्रिकल पावर बनाओगे तो वो थोड़े ना बनेगा, हम कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे सोर्स से, है ना। तो सोर्स के ऊपर बेस करके क्या बोल सकते हैं हम लोग? हम बोल सकते हैं हाइड्रो या हाइडल, थर्मल, विंड, सोलर, न्यूक्लियर। इस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा सोर्स से हम पावर जनरेट कर रहे हैं। और डीजल सर? हाँ डीजल सर? डीजल, हाँ डीजल, सर। डीजल भी यूज कर सकते हैं। तो डीजल, अरे अभी बताओ मेरे को कि हाइड्रो और हाइडल बोलने से क्या समझ में आता है? हाइड्रो जो वाटर से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं सर। वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उस टाइप के पावर प्लांट को हम बोलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। और हमको पता है उसके लिए क्या होता है, बड़ा बड़ा डैम बनाते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं ना, और थर्मल लगाते हैं। हाँ। और थर्मल पावर प्लांट किसको कहते हैं?
इसमें coal- कोयला coal coal use होता water है को सर। burn किया जाता है। क्या होता है? कोल यूज किया कोल जाता है। कंबसन से हम लोग हीट एनर्जी स्टीम के द्वारा और कोल यूज स्टीम के करते द्वारा हो। इलेक्ट्रिसिटी। देखो, थार्म का मतलब क्या है? हीट। हीट से सर, हीट से एनर्जी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं सर। जहां कहीं पे पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपने हीट का इस्तेमाल किया, वो बन गया आपका थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, आप थर्मल पावर प्लांट में आप कोल यूज कर सकते हो, आप डीजल यूज कर सकते हो, आप किसी भी टाइप का ऑयल यूज कर सकते हो, आप बायोमास यूज कर सकते हो, है ना। तो कोई भी टाइप का फ्यूल होगा उसको हम जलाएंगे, गैस बेस्ड हो सकता है, आप गैस यूज, नेचुरल गैस यूज कर सकते हो। तो किसी भी टाइप से अगर हम कोई एक फ्यूल है उसको जला रहे हैं और फिर उसके जो हीट है, उस हीट से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तब जाके हम इसको बोलेंगे थर्मल पावर प्लांट, है ना। विंड पावर प्लांट क्या है? विंड वेलोसिटी से टरबाइन घूमेगा और हवा उससे से जो जनेगा। एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं सर। श्योर। सोलर सबको सोलर जो पता है, Solar energy से न्यूक्लियर रिएक्टिविटी से। तो ये अलग अलग क्या हो गए? अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी, अलग अलग सर। सोर्स ऑफ एनर्जी हम लगा रहे हैं, है ना, जिससे हम पावर जनरेट कर रहे हैं। चलो इतना तो हम सबको पता है, कोई नई बात नहीं किया मैंने। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, कि जनरेशन प्रोसेस क्या होता है। तो डिवाइस यूज टू जनरेट, अभी हमने देखा कि हम पानी से भी बना रहे हैं, कोयला से भी बना रहे हैं, हम हवा से भी बना रहे हैं। तो डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर और ऑल्टरनेटर, है ना। मेन पार्ट है सर अल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर बोलो, जनरेटर बोलो। तो जनरेटर, या फिर जनरेटर किसको बोलते हैं? डीसी जनरेटर को हम जनरेटर बोलते हैं, एसी जनरेटर को हम लोग ऑल्टरनेटर बोलते हैं, है ना। ओके, नाउ व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए जनरेटर? जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल बताओ। It converts mechanical energy into electrical energy. ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। प्रिंसिपल क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं सर? बेसिक प्रिंसिपल, कैसे आप जनरेटर बनाओगे? जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और भी वेलोसिटी से घुमाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यार छोटा सा नाम बता दो ना, कौन सा प्रिंसिपल है जनरेटर का सर? जनरेटर का? Faraday's law of Electromagnetic electromagnetic induction. एग्जैक्टली वही सुनना चाह रहा था मैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ? whenever flux linked to the coil changes, an EMF induced in the coil, and if the circuit is closed, then a current start flowing within the circuit. यही तो है Faraday's law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। फ्लक्स चेंज करो यार, करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल सबको पता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप जितना स्पीड में फ्लक्स को चेंज करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स गिव्स यू द ईएमएफ। सो व्हाट डू वी नीड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? हमको क्या क्या चाहिए? एक जनरेटर बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर एंड मोशन। ओके, सो अपने को चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड within which the coil will be placed। दूसरा चीज क्या चाहिए? एक कॉइल चाहिए जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। और उस कॉइल को हम बोलेंगे आर्मेचर। सो इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड जब हम उसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैग्नेट को ढूंढने निकलते हैं। मैग्नेट कहाँ मिलेगा भाई? मैग्नेट को ढूंढो। मैग्नेट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? मैग्नेट कौन होते हैं? वाइंडिंग यूज करते हैं सर मैग्नेट के। तो मैग्नेट तो मिलेगा, नेचर पे मिल सकता है ना, जिसको हम बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। और नेचुरल मैग्नेट को क्या कहते हो? क्या नाम है नेचुरल मैग्नेट का? नेचुरल मैग्नेट को कहते हैं मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन। तो ये तो नेचुरल मैग्नेट है। अब क्या नेचुरल मैग्नेट हम यूज करते हैं? नहीं, नेचुरल मैग्नेट
यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होगा, ये बहुत बल्कि होगा, और है तो ढूंढ के निकालो, इसका दाम बहुत ज्यादा है, ये बल्कि है, उसका वेट ज्यादा है। इस और क्या हो सकता है कि इसका फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, जितना टाइम स्पेंड होगा फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो भाई क्या करे, तो हम एक काम करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट अगर बनाना है तो आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या क्या मिलेगा? एक तो होगा नर्म लोहा परमानेंट। सर, हाँ बोलो। नर्म लोहा से सर। नर्म लोहा। तो एक होगा आपका परमानेंट मैग्नेट, Yes, sir. और दूसरा होगा आपका टेम्पररी मैग्नेट। Temporary. परमानेंट मैग्नेट किस चीज से, किस मटेरियल से बन सकता है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल? हॉट मैग्नेटिक। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सो परमानेंट मैग्नेट बनेगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से। और टेम्पररी मैग्नेट में हमको दो टाइप के देखने को मिल जाएंगे, एक तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से आप बनाओगे, और दूसरा होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हमने अभी अभी देखा था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो हम अगर करंट पास करेंगे तो क्या करेगा, वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो भाई हमारा मैग्नेट का प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा वाला यूज करने वाले हैं अपने अपने पावर जनरेटर के लिए? टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। क्योंकि टेम्पररी मैग्नेट में भी तो अगर आप नॉर्मल ये यूज करते हो, बार मैग्नेट यूज करते हो, परमानेंट मैग्नेट यूज करने जाते हो, तो क्या होगा, उसका सेम चीज आएगा, इफेक्ट आएगा कि वो बल्कि होगा, वेटी होगा, उसका फील्ड स्ट्रेंथ कमेगा, है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। वेरी गुड, चलो फंडा तो मिल गया भाई, चलो जनरेटर बनाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हमने देखा था कि कैसे मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। Whenever current flows through a conductor, it produces a magnetic field. जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है, फील्ड बनता है। ये बताया था ओर्स्टेड ने हमको, है ना। सो अगर हम एक अगर कंडक्टर ले ले और उसको अगर करंट के साथ कनेक्ट कर दे, तो हम देखेंगे कि ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके हम अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इसका मतलब हमको दो कॉइल चाहिए, एक मैग्नेट के लिए चाहिए और एक चाहिए अपने को आर्मेचर के लिए, ईएमएफ के लिए, आर्मेचर के लिए। तो दो कॉइल चाहिए, है ना। अब अगर दो कॉइल चाहिए भाई, तो यहाँ पे दो जगह है, एक होगा स्टेटर, एक होगा रोटर। होगा कि नहीं होगा? आपको एक स्टेटर में लगाओ, एक कॉइल रोटर में लगाओ। अभी बताओ कि दिक्कत यहाँ पे आ गई कि कौन सा कॉइल कहाँ पे लगाए, रोटर में कौन सा लगाए, स्टेटर में कौन सा? रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर में हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग। रोटर में आर्मेचर, स्टेटर में फील्ड। पक्का? यस सर। यस सर। और कोई बोलेगा? सर डीसी जनरेटर के केस में आर्मेचर, रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। हाँ, डीसी जनरेटर के केस में रोटर में आर्मेचर। ओके, और एसी के केस में? ऐसे केस में सर आर्मेचर को रोटर में फील्ड वाइंडिंग करेंगे। रोटर में फील्ड वाइंडिंग। ओके, ऐसा क्यों? उल्टा सर करने क्योंकि से क्या सर होगा? कूलिंग प्रॉब्लम आती है कि अगर आर्मेचर से हम सोर्स लोड या सोर्स को कनेक्ट करते हैं, तो अगर जो स्टेशनरी मटेरियल है उसको कूलिंग करने में ज़्यादा आसान होता है। और अगर वो डीसी के केस में अगर हमने आर्मेचर वाइंडिंग को अगर हमने रोटर में कर दिया तो वो मूविंग है, तो उसमें कूलिंग प्रॉब्लम आ सकती है सर। यार आप बोल रहे हो, समझना बात को, ठीक है, कि आप बोल रहे हो कि कूलिंग इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं कि आसानी से कूलिंग हो जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आर्मेचर को स्टैटिक रख रहे हैं, है ना भाई। कोई और एनोटेट मत करो रे, नहीं तो दिक्कत होगा, है ना, आप ही को प्रॉब्लम होगा, मेरा क्या है। तो आर्मेचर को
हम क्या कर रखेंगे, स्टैटिक रखेंगे। क्यों स्टैटिक रख रहे हो? ताकि कूलिंग इफेक्ट, आप कूलिंग कर सको बढ़िया से, और फील्ड को आप रोटेट कर रहे हो। ठीक है, ये किसके केस पे कर रहे हो? स्टैटिक आर्मेचर किसके केस पे बोल रहे हो? एसी जनरेटर। एसी पे। और डीसी पे इसका उल्टा होता है ना? तो डीसी के केस में कूलिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है आपको? डीसी के केस में डीसी 30 to 40 मतलब कम रेंज के पावर को ही यूज किया जाता है, इसलिए वो चल जाता है। और तो डीसी में अगर हम आर्मेचर को स्टैटिक रखें तो क्या दिक्कत है? सर डीसी में कम्यूटेटर यूज होता है, लेकिन एसी में स्लिप रिंग यूज होता है, मतलब ऑल्टरनेटर में। सो बिकॉज ऑफ दैट जब अगर हम तुम्हारा वो फील्ड वाला अगर हम स्टेटर पे रखे और आर्मेचर वाला रोटर पे रखे, तो हर 3 फेज के लिए, बिकॉज इट्स एसी, तो 3 फेज के लिए विल नीड स्लिप रिंग्स, 6 स्लिप रिंग्स। और डीसी में वो चाहिए नहीं होता, तो इसलिए हम उसको आर्मेचर को स्टेटर पे रखते हैं। थोड़ा सबका बात सही है, गलत किसी का नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा सही नहीं है। चलो समझाते हैं। देखो, सब लोगों का बात थोड़ा सही है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे पढ़े हो तभी तो बोल पाए हो। अभी देखो भाई, फॉर ऑल्टरनेटर मेरे को सिर्फ 2 सवाल का जवाब चाहिए। ऑल्टरनेटर का जो कोयल होता है, उस कोयल में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किस टाइप का करंट होता है, एसी की डीसी? एसी सर। एसी करंट होता है। एसी। और डीसी जनरेटर का जो कोयल होता है उसमें कौन सा टाइप का करंट होता है, एसी की डीसी? सर कॉइल में AC एसी ही ही होता है। कोयल में एसी ही होता है। तो दोनों के 12 से कोयल 20 में, दोनों के ही कोयल में, एसी जनरेटर हो डीसी जनरेटर हो, कोयल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एसी करंट ही प्रोड्यूस हो रहा है। Yes, sir. इसका मतलब आपका डीसी जनरेटर इज इक्वल टू व्हाट? एसी जनरेटर प्लस कम्यूटेटर। हमको कम्यूटेटर लगाना पड़ता है करंट को एसी से डीसी बनाने के लिए, है ना? कम्यूटेटर आपको पता है क्या होता है? कॉपर का सिलेंडर होता है। अब कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेट करने के लिए उसको तो घुमाना पड़ेगा ना, घूमना पड़ेगा आर्मेचर को। अगर आर्मेचर स्टैटिक रहेगा तो आप कम्यूटेट नहीं कर पाओगे, कम्यूटेटर का यूज नहीं कर पाओगे। फील्ड रोटेटिंग रहेगा तो आप कम्यूटेटर लगा नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि कम्यूटेटर अगर फिक्स रहेगा तो फिर कम्यूटेशन होगा कैसे, अगर कम्यूटेशन समझते हो तो। इसीलिए डीसी में ये मैंडेटरी है, रेस्ट्रिक्शन है कि आपको फील्ड स्टैटिक रखना ही पड़ेगा, आर्मेचर रोटेटिंग चाहिए ही चाहिए फॉर कम्यूटेशन। लेकिन एसी में आपका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एसी में आप दोनों यूज कर सकते हो, बट हम क्या प्रेफर करते हैं? वी प्रेफर रोटेटिंग फील्ड स्टैटिक आर्मेचर। इसके पीछे का कारण को समझो कि हम जब इसमें जनरेटर में अगर हम क्या करते हैं, एसी करंट जनरेट कर रहे हैं, तो आपको एक्साइटेशन वोल्टेज देना है फील्ड के लिए। और एक्साइटेशन अगर हम देते हैं रोटर में, तो एक्साइटेशन वोल्टेज क्या होगा? स्मॉल वोल्टेज होगा, डीसी वोल्टेज स्मॉल। तो यहाँ पे आप कार्बन ब्रास के साथ, स्लिप रिंग के साथ आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, जो ब्रश के मदद से घूमता रहेगा कनेक्शन। वहीं पे आप जब एसी करंट जनरेट कर रहे हो, कितना वोल्टेज लेवल पे जनरेट करते हो? पावर प्लांट में वोल्टेज कितना रहता है? 11 केवी। 11 केवी जनरेशन वोल्टेज होता है। अब 11 केवी का अगर आपको ब्रास लगाना पड़ जाए तो सोचो कितना हाई करंट होगा। वो ब्रास 2 दिन में खत्म होगा, है ना? तो ये तो एक बात हो गई कि ब्रास के वो चलते। दूसरा है कि आप अगर 11 केवी का केवी में जनरेट कर रहे हो और एम्प्स बहुत ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा, तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा,
तो जो बोले थे कि यार कूलिंग के लिए स्टेटर में लगाना बेटर है। तो ये हो गई दूसरी बात कि हम कूलिंग पर्पस के लिए कि अगर आपका स्टेटर का कोयल स्टैटिक है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यार कूल बोलो या फिर वाटर जैकेट बताओ बोलो, तो लगा सकते हो, उससे उसमें से वाटर पास होता रहेगा, उसमें हमको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारा मेजर करंट अगर रोटर में पैदा हुआ, इसमें अगर आर्मेचर हुआ, तो क्या होगा, अंदर में एयर कूल्ड है और इसी में घूमेगा, तो इतना जल्दी से उसको ठंडा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी बातें इसलिए मैंने बोला कि सबका बात है थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन एग्जैक्ट फंडा समझ में आ गया। डीसी में हमारा रेस्ट्रिक्शन है, क्यों? क्योंकि कम्यूटेशन करना है, कम्यूटेशन के लिए अपने को कम्यूटेटर लगाना है तो रोटर को घुमाना ही पड़ेगा, आर्मेचर को घुमाना ही पड़ेगा। एसी में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट क्योंकि हम हायर करंट एम्प्स ले रहे हैं तो क्या होगा, कार्बन ब्रास का प्रॉब्लम आएगा, दूसरा क्या होगा, कूलिंग का प्रॉब्लम आएगा। इसी के चलते हम क्या करते हैं, स्टेटर में हम आर्मेचर लगा देंगे, रोटर में हम फील्ड वाइंडिंग लगाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। yes sir, ओके चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो जनरेटर का तो कंस्ट्रक्शन हो गया भैया। Thus for alternator we connect an excitation voltage to the rotor coil. एक एक्साइटेशन वोल्टेज यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना, जनरेटर के अंदर। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से, बंद कर दो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से ऑल्टरनेटर में करंट कितना प्रोड्यूस होगा, अभी बताओ। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्साइटेशन वोल्टेज दिया, यहाँ पे वोल्टेज कितना पैदा होगा, कितना पावर जनरेट होगा, कितना वोल्टेज आएगा, बोलो भाई। करंट आएगा यहाँ पे? नहीं, अभी कोई करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? constant flux, कांस्टेंट फ्लक्स। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। सो अभी हमने एक्साइटेशन वोल्टेज तो दे दिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, बट नो करंट विल प्रोड्यूस इन द आर्मेचर। व्हाई? क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, हमने डीसी वोल्टेज सप्लाई किया है, फ्लक्स स्टेडी बैठा हुआ है। सो वी हैव टू रोटेट द रोटर ऑफ द ऑल्टरनेटर, हमको ऑल्टरनेटर का रोटर को घुमाना पड़ेगा। और ये चैलेंज कैसे फुलफिल कर सकते हैं, बताओ। prime mover, प्राइम मूवर क्या है? hydro, solar, wind, सोलर। प्राइम मूवर क्या है बताओ, व्हाट इज प्राइम मूवर? जो शाफ्ट को घुमाएगा। घुमाने के लिए अपने पास क्या क्या डिवाइस है? घुमाने के Motor, sir. लिए हमारे पास क्या क्या डिवाइस है बताओ? टरबाइन जनरेटर सर, सर, टरबाइन, विंड टरबाइन, सो घुमाने के लिए हमारे पास दो बेसिक प्राइम मूवर मिलते हैं। एक हो गया आपका टरबाइन, है ना। एक जनरेटर। टरबाइन क्या करेगा, घुमाएगा। टरबाइन का काम यही है कि वो जो भी चीज लगाओगे उसको घुमाएगा, है ना। और क्या है अपने को घुमाने के लिए? जनरेटर सर, जनरेटर थोड़ी ना घुमाता है यार, जनरेटर तो जनरेट करता है। डीजल हो गया सर, डीजल। डीजल, अब डीजल तो एक फ्यूल है। हम प्राइम मूवर की बात कर रहे हैं, हम मशीन्स की बात कर रहे हैं। घुमाओगे कैसे? मोटर। यस, इलेक्ट्रिकल साइड से देखोगे तो आपके पास है मोटर, और मैकेनिकल साइड से देखोगे आपके पास है टरबाइन। ये दो ही मशीन है जो किसी भी चीज को घुमाता है ना, घुमाता रहेगा। आप लगा दो वो घुमाता रहेगा। समझ में आया? यस सर। तो हम मोटर कुछ अपने से काम नहीं करता है। मोटर क्या करता है, वो घूमता है और घुमाता है।
अब मोटर से काम लेना है तो उसके साथ आप पंप लगाओगे, उसमें आप फैन लगाओगे, उसमें आप कंप्रेसर लगाओगे, हाँ उसके साथ आप छोटा मोटा जनरेटर लगाओगे। तो मोटर से भी घुमा सकते हो जनरेटर को, या फिर टरबाइन से घुमाएंगे। तो टरबाइन और मोटर का अंतर क्या है? टरबाइन और मोटर में अंतर यही है कि टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी से रोटेशनल एनर्जी देता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोनों का काम पर्पस एक ही है, घुमाना, है ना। सो अपने को क्या करना पड़ेगा? अभी अपने को इस जनरेटर का रोटर को घुमाने के लिए एक टरबाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम मोटर तो लगाएंगे नहीं। अगर हम मोटर लगाएंगे तो पावर प्लांट में मोटर से अगर जनरेटर घुमाओगे तो क्या होगा? सारा पावर तो वो खुद खा जाएगा जितना आप जनरेट करोगे, ऑक्सिलरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इतना बड़ा मोटर लाओगे कहाँ से, है ना? और फिर खराब होगा, 2 दिन बाद जलेगा। तो इससे अच्छा है एक काम करो यार, टरबाइन लगाओ। लगाए टरबाइन? ये लगा दिया हमने टरबाइन ऑल्टरनेटर के साथ। अब देखो इसको कहते हैं टरबाइन, और टरबाइन होता है कितने टाइप का? टरबाइन भी अलग अलग टाइप का होता है ना, चलो उसमें आएंगे। पहले ये बताओ, आप टरबाइन तो लगा दिए हो, अब क्या चैलेंज बचा है आपके साथ? नेक्स्ट चैलेंज क्या है? नेक्स्ट चैलेंज ये है, हाँ बोलो। सोर्स देखो हम टरबाइन रोटेट हो। हम शुरू से एक बार सोचे, हम पावर प्लांट बनाने गए, पावर जनरेट करना चाहा, तो हमने देखा कि भाई पावर आएगा कैसे? हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमा देंगे तो पावर आएगा। हमने मैग्नेट ढूंढा, मैग्नेट में बहुत सारे टाइप के मिले, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रेफर किया। हमको कॉइल मिला, अब कॉइल 2 कॉइल मिले तो फील्ड कहाँ पे लगाएंगे, आर्मेचर कहाँ पे लगाएंगे, उसका डिसीजन कैसे करें? तो हमने देखा कि डीसी के लिए तो भाई मैंडेटरी है, आपको फिक्स्ड आर्मेचर फिक्स्ड फील्ड रखना ही पड़ेगा, आर्मेचर को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेशन का सवाल। एसी में क्या है कि हमारा हाथ खुला है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट प्रेफर्ड वही है कि स्टैटिक आर्मेचर रहे और फील्ड को घुमाए। उसका कारण बता चुके हैं। अब आए हमारे पास चैलेंज कि इसको घुमाए कैसे। घुमाने के लिए 2 तरीका है, या तो मोटर लगाओ या टरबाइन लगाओ। तो हमने बोला एक काम करो यार, टरबाइन ही लगा देते हैं, क्योंकि मोटर तो खुद करंट खा जाएगा ज्यादा, तो टरबाइन लगा दिए। अब आया हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज कि यार टरबाइन तो लगा दिए हो, घुमाओगे, लेकिन वो घूमेगा कितना स्पीड पे, कितना आरपीएम पे घुमाना है? ये हो गया ना कि इसको जो घुमाना है अपने को, कितना स्पीड पे घुमाओगे बताओ, कैसे डिसीजन होगा? ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज होता है इंडिया का, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी का और स्पीड का रिलेशन तो बताओ। P/120। यस, P डेल्टा N by 120, P डेल्टा N by 120, है ना। डेल्टा N क्यों बोल रहा हूँ? फोन करता है, पूछता है कि क्या भाई कैसा चल रहा है पढ़ाई सब? हमरा तो कोई मास्टर 5 गो सवाल नहीं जवाब दिए, बोला निकलो यहाँ से। नहीं कि तनी पूछते कि भाई तुम 5 गो सवाल काहे नहीं किए, क्या पढ़ता नहीं है, ये सब कुछ ना। कोई हमसे कुछ बच बोल गए, रहा है क्या? पूछता है, बोलते हैं सर 13 दिन से आपका क्लास नहीं कर रहे थे सर, मैं कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया था। तो P डेल्टा N क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिलेटिव स्पीड होता है। अभी हमारा स्टेटर तो स्टैटिक है, इसीलिए क्या हो रहा है, स्टेटर का जो क्या कहते हैं इसको, आर्मेचर का स्पीड 0 है, तो हम डायरेक्टली N लिख सकते हैं, और N कितना हो जाएगा? 120 F/P होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी तो आपका 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज लगा दो, कितना होगा? 6000/P। तो अगर 2 पोल अल्टरनेटर है तो 3000 आरपीएम, 4 पोल अल्टरनेटर है तो 1500 आरपीएम, 6 पोल अल्टरनेटर है तो 1000 आरपीएम, 12 पोल अल्टरनेटर है तो 500 आरपीएम। मतलब नंबर ऑफ पोल्स जितना बढ़ा रहे हो मशीन में, जनरेटर में, आपका आरपीएम उतना कम होता जा रहा है, उतना कम आरपीएम में घुमाने से चलेगा। तो अपने पास तो टरबाइन लगाए हैं, और पकड़ लो हमने लगा जो टरबाइन है वो टरबाइन स्टीम टरबाइन आपने लगाया,
अब स्टीम टरबाइन का आरपीएम जो है उसका क्या कोई लॉजिक है? नहीं, इसका कोई माँ बाप नहीं है। ये 7000 आरपीएम भी हो सकता है, 3000 आरपीएम भी हो सकता है मिनिमम। अगर बहुत बड़ा टरबाइन है तो 3000 आरपीएम का टरबाइन आपको दिखने को मिलेगा। अदरवाइज छोटा टरबाइन है उसका आरपीएम उतना ज्यादा होता रहेगा, 7000 आरपीएम होगा, 8000 आरपीएम होगा, 12000 आरपीएम होगा। तो इसका आरपीएम का कोई माँ बाप नहीं है टरबाइन का। सो टरबाइन का आरपीएम इतना ज्यादा होगा, लेकिन अपने को जनरेटर का आरपीएम पता है कि यहाँ पे मुझको 1500 आरपीएम ही चाहिए। पकड़ लो, मैंने 4 पोल ले लिया। मैक्सिमम सीपीपी में आपको 4 पोल अल्टरनेटर देखने को मिलेंगे। तो 4 पोल अल्टरनेटर है मतलब 1500 आरपीएम चाहिए। तो ये तो फिक्स हो गया। अब टरबाइन के आरपीएम की बात है। ये अगर 8000 है, यहाँ पे 1500 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? बीच पे अपने को एक गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा। कपलिंग के लिए क्या लगा रहे हो? गियर बॉक्स। अब ये गियर बॉक्स का रेशियो उतना होगा कि आपका जो टरबाइन का आरपीएम है और आपका आउटपुट आरपीएम इतना हो जाएगा 1500 आरपीएम। बढ़िया, हो गया, खेला खत्म। तो ये जो शाफ्ट है, जो टरबाइन के साथ लगा हुआ शाफ्ट होगा, वो शाफ्ट क्या है? दिस इज योर हाई स्पीड शाफ्ट। और जो अल्टरनेटर के साथ शाफ्ट लगा हुआ है उसको हम बोलेंगे लो स्पीड शाफ्ट, क्योंकि आप देख सकते हो टरबाइन के साइड में क्या है? हाई स्पीड है। और बॉयलर बोल रहा हूँ, आपका अल्टरनेटर के साइड में स्पीड कम है ना। अब ये टरबाइन जो है ना, टरबाइन आपको 3 टाइप के टरबाइन, 3 नहीं 4 टाइप के टरबाइन। क्या क्या टरबाइन मिलेगा बताओ? टरबाइन क्या क्या मिलेगा? टरबाइन आपको मिलेगा मेनली स्टीम टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन, गैस टरबाइन, और एक एडिशनल जिसको हम अलग से कैटेगरी में रखते हैं वो है विंड टरबाइन। ठीक है, तो ये 4 टाइप के टरबाइन मिलेंगे। और हम लोग जो यहाँ पे आप लोग मेरे साथ करोगे, हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम टरबाइन के साथ। हम पावर प्लांट की डिस्कस करेंगे, थर्मल पावर प्लांट में कैसे पावर जनरेट करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो सारा चीज समझ में आया सबको? बताओ भाई, कैसा लगा सेशन? कुछ सीखने को मिला? कुछ याद आया? मजा आया कि नहीं आया? यस सर, बहुत मजा आया सर। हाँ सर, मजा आया सर। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। नहीं बापन दास, हो नहीं सकता है। बात कर रहा हूं मैं लोगों से, मेरा वॉइस नहीं आएगा तो किसका आएगा? है ना? वॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, वॉइस आ रहा है सर। पूरा बढ़िया से आ रहा है वॉइस। सवाल ही नहीं उठता है। मैं अगर बिना माइक के चिल्ला दूं तब भी पहुंच जाए आपके पास मेरा वॉइस, है कि नहीं? यस सर। मैं यहाँ से ये खोल के चिल्ला दूं ना तब भी पहुंच जाएगा। देखना चाहते हो? पावर प्लांट तो चल जाएगा सर। हाँ, ट्रांसमिशन लाइन लगा देंगे हवा में। हाँ सर, हवा में बात करेंगे, क्या दिक्कत है? कर सकते हो हवा में बात, उसका भी तरीका है, कर सकते हो। यस सर, हवा में तो बातें करते हैं सर कॉलेज में। हाँ, और क्या करोगे? बातें ही ना करोगे। चलो पावर प्लांट अभी थोड़ा सा बात करते हैं। कितना टाइम हो गया? चलो 8 बजने वाला है। बहुत सारे लोगों सब लोगों से बात करना तो पॉसिबल होगा नहीं। बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो यही दिक्कत है। बहुत दुख होता है कि आप लोग मेरे को देख पाते हो, मैं आप लोगों को देख नहीं पाता हूँ, मिल नहीं पाता हूँ। फेस टू फेस यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग होने से वो मजा आता है, इंटरेक्शन होता है ना। एनीवेज, तो जितना भी होता है उसमें एक बात बताओ मेरे को, आप लोग कौन से सेमेस्टर से हो? मेनली 5th सेमेस्टर। प्रमोट होने के बाद 5th सेमेस्टर में आ गए सर। क्या क्या? प्रमोट होने के बाद 5th सेमेस्टर में आ गए हैं सर। सर 7th सेम सर। 7th सेम पहले मतलब तुम्हारा? 4th में थे। हाँ, अभी 5th में आ गए। यस सर, प्रमोट के बाद बढ़ रहे हो, ग्रोथ है तुम्हारा। चलो ठीक है। तो मोस्टली 5th सेमेस्टर से हो? यस हाँ सर।
कॉलेज कौन सा कॉलेज से हो भाई, थोड़ा थोड़ा बताओ तो सब लोग एक बार टाइप कर दो, हम देख लेगा चैट पे, क्योंकि सबसे आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज बोध गया। हाँ आर्यभट्ट से हो, एनआईटी अगरतला से है, आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत गया में सर। एनआईटी अगरतला, वेरी गुड, बहुत सारे एनआईटी अगरतला से हैं। हाँ लवली लवली लवली, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और कुछ तो बोध गया से है ना, गौतम बुद्धा के जगह से है भाई। एपीसी बोध गया, एनआईटी अगरतला। हाँ इस पेज में मोस्टली आपका अगरतला। अच्छा जीस्ट का भी है, अभिषेक शर्मा जीस्ट, वेरी गुड, आसाम से। आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज बोध गया। आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज बोध गया। ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी क्या आप लोगों का क्लासेस चल रहा है ऑनलाइन पे? नहीं सर, ऑफलाइन चल रहा है सर। ऑफलाइन चल रहा है। सर। यस सर, फिफ्थ सेम का। क्या करना है इंजीनियरिंग करने के बाद, क्या करना है बताओ? इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब तो उसे लेना है। अप्लाई करना है बस। जॉब 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 जॉब, क्या क्या टाइप का जॉब होता है बनना पता है। है? जेई बनना है सर। सर जहाँ यही बनना इंजीनियरिंग है। अप्लाई हो पाए सर। यार एक बात बताओ मेरे को, ऐसा कौन सा बंदा है इस दुनिया का जो पढ़ाई कर रहा है और जिसको जॉब नहीं चाहिए? ऐसा कोई है कोई नहीं सर। जो कोई बोलेगा नहीं है। नहीं यार मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को सिर्फ नॉलेज चाहिए, मुझको जॉब काम ऐसा कुछ नहीं चाहिए? कोई सर ऐसे कोई नहीं है। कोई कोई मेरे को मतलब ही नहीं है ये सब चीजों से, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ और मस्त मेरा जिंदगी कटेगा, ऐसा कोई नहीं मिलेगा, है ना? सर ऐसे कोई नहीं है। सबको जॉब चाहिए। और आपको पता है कि इंडिया में इंजीनियर्स कितने निकलते हैं हर साल? हर साल कितना इंजीनियर निकलता होगा? यस सर, उतना वैकेंसी नहीं है सर। निकलता कितना होगा वो तो बताओ पहले। 10-12 लाख। 12 से 15 इतना लाख जानते हैं सर कि जितना निकलता है उतना वैकेंसी नहीं आती। 12 से 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं दोस्त, 12 से 15 लाख। अब 12 से 15 लाख इंजीनियर निकलता है, जॉब वैकेंसी होता है कितना पता है? 3 से 4 लाख का, मैक्सिमम 5 लाख। यस सर। तो बाकी लोग 10 कहाँ लाख पे? चाय बेच रहा है सर। बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं चाय मैं बेच रहा होगा। हाँ, तो Yes, बाकी sir. लोग यही ड्रीम देख रहा है कि यार मेरे को एक जॉब मिलेगा। तो मैं सिर्फ आप Yes, लोगों sir. को इतना हिंट्स दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉलेज का बाउंड्री का जो माहौल होता है ना, वो बड़ा मजेदार Yes, होता है। sir. इंजीनियरिंग कॉलेज का वो लाइफ का गोल्डन टाइम होता है ना? वो जिंदगी में फिर मिलने वाला नहीं है। इसमें जो भी मजा करना है सब कुछ करो, लेकिन फोकस अपने फोकस पे रखो। फोकस शिफ्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज याद रखो, इस नेचर ने अपने को सब कुछ दे दिया है, आपके हाथ में ही है सब कुछ। आप उस चीज का कैसे यूटिलाइज करते हो, अपने नॉलेज का कैसे यूटिलाइज करते हो, अपनी जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना मिलेगा। अभी हम लोग जितना मेहनत करते हैं, आप बोलोगे सर मैं तो पूरा दिन रात पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा रिजल्ट सही नहीं आता, तो कौन बोल रहा है दिन रात पढ़ने को? थोड़ा मस्ती भी करो, है ना? तो पढ़ाई मस्ती ये सारा चीज मिलके लाइफ है। खाली Yes, मस्ती sir. खाली पढ़ाई दोनों बर्बाद है। फिर बाद में ये पूरा अगर 4 साल सिर्फ पढ़ते ही रहोगे, तो बाद में जब बैठोगे ना बुढ़ा हो गया हमारे जैसा, तो क्या बोलोगे कि यार क्या किए हो लाइफ में? यहाँ से निकलोगे ना, उसके बाद से टेंशन शुरू लाइफ का। यार पैसा कैसे कमाए, स्टेटस कैसे बढ़ाए, पैसा खत्म हो रहा है, घर कैसे चलाए, तो बड़ा झंझट। ये 4 साल टाइम है आपके पास, और हार्डली 5th सेमेस्टर में हो तो 2 साल बचा है। इन 2 साल में एंजॉय पूरा करो, फुल एंजॉयमेंट। और वो भी अगर आपको करने दे कोविड-19 तो कॉलेज खुलेगा तब तो करो। अब उसके साथ क्या है ना, एक चीज आप लिख के रखो कि मेरे को डेली बेसिस पे इतना टाइम मेरे को पढ़ना है। पूरा मस्ती किया, 2 घंटा एटलीस्ट मैं एकदम कंसंट्रेटेड पढ़ूंगा। ये जब पढ़ने बैठोगे ना, उस टाइम पे आपके दिमाग में और कुछ चलना नहीं चाहिए। उस वक्त स्विच ऑफ। 2 घंटा पढ़ो
तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ, आपका बाकी जितना टेंशन है वो सारा टेंशन स्विच ऑफ, आपका कुछ भी है जितना सारा चीजें है ना, वो सारी चीजों को स्विच ऑफ करके बोलो कि मैं 2 घंटा मैंने रखा है अपने लिए और ये 2 घंटा मैं सिर्फ पढ़ूंगा। एक चैप्टर पढ़ो, एक पेज पन्ना पढ़ो, लेकिन उस टाइम पे अपना दिमाग को स्विच ऑफ करके पढ़ो, सिर्फ उसमें फोकस करो। करेंगे सर तो ऑनलाइन पढ़ते हैं सर, कैसे होगा? क्या चीज? ऑनलाइन क्लास करते हैं सर, तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे तो कैसे होगा? वो तो क्लास में चला गया ना, हम बोल रहे हैं तुम अपने लिए जब तुम बैठोगे पढ़ने, खुद पढ़ने बैठोगे उस टाइम, अभी तो आप हमसे बतिया रहे हो, तो बतिया रहे हो तो थोड़े ना मोबाइल स्विच ऑफ करोगे, है कि नहीं? आप जब बैठोगे दिन में एटलीस्ट 2 घंटा लिख के रख लेना कि यार मेरे को 2 घंटा एटलीस्ट ये सोचना है, समझना है कि मैंने क्या पढ़ा, क्या कल से मेरा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन जितना ज्यादा होगा आपको अपने शूज के लेस उतने ही टाइट कसने होंगे, समझ रहे हो ना? और आज के डेट में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है यार, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो फिर आप लोगों का क्या, समझ रहे हो? सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपको यहाँ पे कुछ क्लासेस देंगे जिसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे मैं बता देता हूँ एक बार, और पूरा डिटेल्स में आपको ग्रुप में दूंगा। आप लोगों को हम यहाँ पे जैसे पावर प्लांट का शुरू किए हैं, पावर प्लांट का इन एंड आउट बताएंगे, उससे रिलेटेड चीजें जैसे बताया था मैंने ऑटोमेशन, अब ऑटोमेशन क्या होता है, पीएलसी क्या होता है, डीसीएस क्या होता है, तो इसका ओवरऑल ज्ञान मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है, आपका एटीट्यूड असली चीज होता है जो आपके लाइफ में काम में आता है। एक इंजीनियर को सिलेक्ट करते हैं ना, तो शुरुआत में सिर्फ हम एटीट्यूड देखते हैं कि ये बंदा सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है, अपनी जिंदगी कर सकता है नहीं कर सकता है। तो आगे और बात करेंगे, आज के लिए यहाँ पे खत्म करूं, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और आप जितने सारे बच्चे आज ज्वाइन किए हो, अगर आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग ये करना, मैं आपको व्हाट्सएप में लिंक दे दूंगा, अपना ऐप है ओंटोजेनेसिस, वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको कुछ पीडीएफ वगैरह मैं दूंगा जो ग्रुप में ही मिलेगा, है ना? रिकॉर्डिंग वीडियोस जो होगा क्लास का, रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको अपने ऐप में मिलेगा, ओंटोजेनेसिस के ऐप में मिलेगा। जाते जाते सिर्फ इतना एक बार चैट पे लिख के जाओ कि मेरे साथ क्लास करके कैसा लगा, मैं जो अपना एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा हूँ आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, उसमें कितना सक्सेसफुल है, कितना एफिशिएंट है। सर कितना दिन तक ये क्लास चलेगा? कोर्स चलेगा आपका, पकड़ लो पूजा से पहले पहले छोड़ देंगे, दुर्गा पूजा तक। हाँ, ज्यादा क्लास नहीं लेंगे यार, हम उतना ज्यादा बोरिंग क्लास कराना में मतलब नहीं रखते, हम छोटा छोटा क्लास कराते हैं जिसमें बहुत सारा चीज सिखा देंगे, है ना? एकदम इतना चीज देंगे, उसी में देखोगे कि बहुत सारा। अभी देखो आज का जो क्लास था, आज का क्लास में थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से फीडबैक मिलता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो बेकार है सब कुछ। क्या होता है ना कि आप जब किताब खोलते हो, किताब खोल के आप पढ़ते हो, बोरिंग ऐसा करके, वो समझ में नहीं आ रहा, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि किसके साथ किस चीज को रिलेट करें। आज का क्लास को अगर समराइज करते हो, एकदम छोटा में समराइज हो जाएगा 5 मिनट में। क्या है, हमने आंख बंद करके देखो, हमने कहाँ से शुरू किया, हमको करंट पैदा करना है। अब करंट पैदा करना है तो हमने ढूंढा कि यार कैसे हो सकता है, तो हमने देखा कि यार एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को घुमाते हैं तो करंट बनेगा, तो मैग्नेट कहाँ पे मिलेगा, तो मैग्नेट को ढूंढने निकले, तो नेचर में जो मिला उसको बोलते हैं लोडस्टोन या फिर मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट या लोडस्टोन उसको तो यूज कर नहीं पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, वो तो कॉस्टली होगा, बल्कि होगा, वेटी होगा, इसका स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है, तो छोड़ो यार, इसको हम आर्टिफिशियल बनाते हैं। आर्टिफिशियल को ढूंढने गए तो हमको मिला हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इसके ऊपर डिटेल्स में बात नहीं किया हमने, बाद में करेंगे कभी, तो आप लोग थोड़ा बहुत पता है। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दोनों परमानेंट मैग्नेट अगर बनाएंगे इन दोनों चीजों से तो बात बराबर है, फील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा यार। तो उससे आसान तरीका है ना अपने पास, क्या है, ओरस्टेड के पास चलो,
कि कोयल लो और कोयल को रब कर पेच मार के इससे करंट पास कराओ, मैग्नेट बनेगा। जब भी करंट दोगे मैग्नेट बनेगा, फील्ड स्ट्रेंथ कभी कम नहीं होगा। और हल्का सा होगा, एक कोयल होगा तो कितना, परमानेंट मैग्नेट से तो काफी कम होगा ना वेट। तो चलो यार इसी से बनाते हैं। अब जब हम बनाने गए तो हमको दिक्कत आया कि यार 2 कोयल मिल गया, रोटर में लगाए, स्टेटर में लगाए, किधर को लगाए। तो हमने देखा कि डीसी जनरेटर के लिए तो अपने को कम्यूटेशन चाहिए, कम्यूटेशन चाहिए तो आर्मेचर को घुमाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब डीसी में क्या होगा कि फिक्स रखना पड़ेगा फील्ड, तब जाके कम्यूटेशन होगा। हो गया खत्म डीसी जनरेटर का। आए एसी में, अब इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है? इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों कर सकते हो, चाहे फील्ड घुमाओ चाहे आर्मेचर को घुमाओ। बट फील्ड को घुमाना हमारे लिए बेहतर है क्योंकि फील्ड में रहेगा करंट कम करंट होगा तो ब्रश से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या करते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं। दूसरा है स्टेटर में रहेगा हाई करंट तो हीट प्रोड्यूस होगा ज्यादा, तो कूलिंग के लिए डेफिनेटली स्टैटिक चीजें बेटर है। वाटर जैकेट के अंदर रख सकते हैं, एयर कूल कर सकते हो, वाटर कूल कर सकते हो, कोई भी देखा जाएगा। तो बन गया अपना जनरेटर का। अब दिक्कत कहाँ पे आया कि हमने एक्साइटेशन वोल्टेज भी लगा दिया यार, फील्ड प्रोड्यूस हुआ लेकिन करंट नहीं आया। कैसे आएगा, घुमाए थोड़ा ही ना हो, तो फ्लक्स चेंज होना पड़ेगा। फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या चीज से घुमाए? तो घुमाने का 2 मशीन, एक टरबाइन एक मोटर। टरबाइन क्या, मैकेनिकल चीज कि मैकेनिकल एनर्जी देंगे और रोटेशनल एनर्जी निकलेगा। मोटर क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, रोटेशनल एनर्जी निकलेगा। तो मोटर को तो लगाएंगे नहीं, करंट खा जाएगा भाई, तो टरबाइन लगाते हैं। टरबाइन को लगाए तो इसमें देखा गया कि यार घुमाएगा तो ये तो बहुत स्पीड में घुमा देगा। अब हमारे दिमाग में आया कि हमको स्पीड रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे करना है, कितने पे करना है, किस चीज के ऊपर बेस करके करना है। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी के साथ स्पीड का एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? F इज इक्वल टू P डेल्टा N बाई 120। सो अगर पोल्स, हम नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्पीड डिपेंड करता है। क्या होगा स्पीड? 120 F बाई P। चलो यार फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है इंडिया में 50 हर्ट्ज, लगाए तो देखा 6000 बाई P। अब P वेरी करेगा, P 2 पोल हो सकता है, 4 पोल का हो सकता है, 6 पोल का हो सकता है, 8 पोल का हो सकता है, 12 पोल का हो सकता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे आरपीएम उतना कम होता जाएगा। तो थर्मल पावर प्लांट जितने सारे होंगे, जहां पे आप स्टीम टरबाइन यूज करोगे, गैस टरबाइन यूज करोगे, वहां पे टरबाइन का आरपीएम रहेगा हाई। इसका भी फंडा है, बाद में बताऊंगा, एक दिन में थोड़ा ही बता दूंगा सब कुछ। तो टरबाइन का जो आरपीएम होगा वो होगा हाई। तो हमारे लिए क्या बेटर है, हम 2 पोल अल्टरनेटर, 4 पोल अल्टरनेटर यूज कर सकते हैं जहाँ पे हाई आरपीएम चाहिए। लेकिन हाइड्रो टरबाइन, विंड टरबाइन, ये तो बड़ा धीमा टरबाइन है, मतलब एकदम होले होले घूमेगा। तो उसमें आप नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा लगाओ, 12 पोल का लगाओ, 500 आरपीएम पे घूमेगा, आराम से आपको करंट मिलेगा, है ना। तो हाइड्रो या विंड में क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे ऑल्टरनेटर के, और थर्मल में क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे, 2 पोल 4 पोल का। तो पावर प्लांट का तो आधा तो आप आज ही सीख गए हो, अभी और क्या है, एक ही दिन में हमारा सारा एक्सपीरियंस ले लोगे। बाय बाय, एक दिन में नहीं देंगे, हाजमा खराब हो जाएगा। बाय बाय, ठीक है, चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। ठीक है सर। बाय बाय। चलो। हेलो। हाँ धर्म भाई। मेरे विशाल कर लेंगे समझ में आलो, आलू समझ में। हाँ भैया। चंद्रभूषण मजा भैया। आया। चंद्रभूषण। हाँ क्लास कब से है क्लास? चंद्रभूषण नहीं, अमरिंदर। हाँ अमरिंदर भैया, क्लासवा कहीं ना से हम हाँ। खाली सोमवार online- से यार। क्लास आवेंगे यार, स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट ना हुआ है? सोमवार से नहीं यार, तभी प्रैक्टिकल में एग्जाम होना हुआ है। अच्छे जमा करके जल्दी आइए। कौन कौन था? सोमवार से हो रहा है। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलना। आज क्लास में कौन कौन था?
हम थे बस। अकेले क्लास कर लिया? अकेले हरिया लिखा अरे क्लास चालू हो गया रे। था। ओ क्लास चालू हो गया हाँ हो गया रे। तो ग्रुप में मैसेज ना आया हो? मैं कैसे मैसेज गया तो देख ग्रुप में मैसेज नहीं आया है। ये क्या है जाके। नहीं देखे हैं, जैसे देख लेते हैं। हाँ देखो देखो देख आ के रहा बाद है में- रूटीन आया है। तो सोमवार का हो गया, कल तो संडे है। हाँ हाँ सोमवार से चलेंगे हम लोग भी। सोमवार तो सब ही है। ठीक ठीक है।